A very good afternoon to all. We will be beginning with Act 5 now. Act 5 of the Julius Caesar play. We have covered Act 1, 2, and 3 and 4 till now. Abhi tak we have dissected every dialogue piece by piece. Now we will be moving forth with Act 5. A few things before I begin that you need to know. This act in itself is not a very big act. However, this act includes a lot of climax and a lot of closure for characters. It includes uh, your battle, it includes the exchange between the enemies, and also it includes the full circle moments in the protagonist and main antagonist, which is Cassius and Brutus. We see the tragedy unfold, and I will not give you more spoilers, but in a way, in a nutshell, this act is going to sum up everything that we have studied so far. It will close the loose ends and it will come to a close. So we'll be beginning with Act 5, Scene 1 right now. Where it is happening? It is happening in the plains of Philippi, the plain ground which is near Philippi. The act is taking place there. Enter Octavius, Antony, and their army. Who all is present in this scene? Octavius Caesar, Antony, Mark Antony, which is, and their army, और उनकी पूरी सेना प्रेजेंट है इस एक्ट में. Plus, Brutus and Cassius are also present in this scene. Later on, they will join it. Now, Octavius Caesar says, now Antony, our hopes are answered. Antony, हमारी जो hopes थी, they have been answered. Why he is saying that? You said the enemy would not come down. तुमने कहा था that the enemy won't come down. What is Octavius Caesar doing? अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है. किसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है? मार्क एंटनी की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है. We have seen that Octavius Caesar is a person of personality so far. He is not a person who abides Mark Antony directly. He is not a character who listens and follows that. Octavius Caesar is a character in itself which later down the line, not in this play, but later down the line, becomes the first dictator of the city of Rome. Right? So it is very imperative to know about him in this scene, because you will then understand further the level of ambition which is parallel to the level of ambition that Julius Caesar had. जो जूलियस सीजर का वर्चस्व था वो इसके अडॉप्टेड बेटे में भी है. बी इट वो अडॉप्टेड बच्चा है सीजर का, बट लेटर डाउन द लाइन वो राजा बनेगा. पूरा रोमन एम्पायर का फर्स्ट डिक्टेटर वाज Octavius Caesar. However, it is said कि Julius Caesar was somewhat of a dictator himself, but moreover, this title belongs mainly to Octavius Caesar, who got the title via the help of Mark Antony. है ना? But keep the hills and upper regions. है ना? You said Antony that the enemy won't come down. जो enemy है वो ढलान उतर के नहीं आएगा. They will keep to the upper regions and hills. मतलब जो पहाड़ियां हैं उनमें अपनी सेना को क्या कहते हैं पोजीशन करेगा. जो प्लेन ग्राउंड है यहां पे नहीं आएगा. इट प्रूव्स नॉट सो. ऐसा नहीं हुआ है. देयर बैटल्स आर एट हैंड. है ना? देयर आर्मीज आर नियर. आर्मीज आर वेरी नियर. So the battle can begin at any point. They mean to warn us at Philippi here. They mean to warn us मतलब fight us at Philippi only. They do not want to fight us at Sardis. They do not want to fight us at Hills. वो हमसे यहीं पे जंग लड़ना चाहते हैं और यहीं पे खत्म करना चाहते हैं. Answering before we do demand of them. है ना? Answering before मतलब उन्होंने पहला मूव खुद चल दिया है. Before we demand of them, before we challenge them. हमारे चैलेंज करने से पहले ही उन्होंने हम लोगों को चैलेंज कर दिया है. तो इस डायलॉग से आपको यह भी पता चलता है कि ऑक्टेवियस सीजर इज अ वेल हार्डन्ड सोल्जर. ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल्जर जो कि बहुत स्ट्रैटेजिकली सोच रहा है, बहुत प्रैक्टिकली सोच रहा है और बहुत ही ज्यादा करेजियसली भी सोच रहा है एक तरीके से. एंटनी देस सेज टट आई एम देयर बोसम्स. Tut, I am in their bosoms, and I know wherefore they do it. They could be content to visit other places and come down,
with fearful bravery, thinking by this face to fasten in our thoughts that they have courage, but this not so. एंटनी क्या कह रहा है? I am in their bosoms, I am in their hearts, I am in their hearts, I am in their minds, I know what they think of. क्या सोच रहे हैं वो लोग? I know about it, I know all about it, और मुझे इससे मालूम है. Wherefore they do it, why they are doing this. They could be content, वो लोग satisfy हो सकते हैं इस चीज से. What is the thing that they are satisfied of? To visit other places and come down. वो visit करेंगे other places, मतलब हिल्स को छोड़ के प्लेन्स पे आ जाना और नीचे आ जाएंगे विथ fearful bravery. fearful bravery यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? It is a bravery, it is a mask. They are showing us that they are very brave, but in actuality they are not very brave. They have just come down to show us that हम लोग तो बहुत भैया, we do not fear you, we do not care about whoever you are. हम तो लड़ेंगे और यहीं पे लड़ेंगे. But inside their hearts उनको डर लग रहा है. They are very fearful of this, है ना? Thinking by this face, उनके शक्ल को देख के मैं ये बता रहा हूं, to fasten in our thoughts that they have courage, है ना? उनकी शक्ल को देख के मैं ये बता सकता हूं कि वो चाह रहे हैं हमारे दिमाग में ये डालना कि हमारे अंदर बहुत करेज है, वी आर वेरी करेजियस. बट दिस नॉट सो, ऐसा नहीं है. इट इज नॉट द ट्रूथ. अब मैसेंजर आता है. अ मैसेंजर कम्स इनटू द सीन. द मैसेंजर सेज, prepare you generals, generals be prepared, मतलब मार्क एंटनी एंड ऑक्टेवियस. the enemy comes on in a gallant show. gallant show मतलब बहुत ही extravagant तरीके से आ रहा है या फिर बहुत ही ग्रैंड तरीके से आ रहा है ना? एक्स्ट्रावेगेंट और ग्रैंड. दे आर शोइंग, दे आर बोस्टिंग देयर पावर. हमारे पास इतने घोड़े, हाथी, सोल्जर हैं, है ना? देयर ब्लडी साइंस ऑफ बैटल इज हंग आउट. देयर ब्लडी साइन ऑफ बैटल का मतलब है देयर सॉर्ड्स आर unsheathed, मतलब their swords are out, their swords are in their hands, they are not kept into the sheath. sheath मैंने आपको बताया था, it is a place where you keep the sword. तो वो नहीं है, they have taken those out and something to be done immediately. अब हम लोगों को इसकी वजह से कुछ immediately करना पड़ेगा. And Antony says, Octavius, lead your battle softly on upon the left hand of the even field. Octavius, जाओ लेफ्ट साइड पे अपनी आर्मी को लेके जाओ and command the battle there and take your army there and start the fight there on the left side. Octavius यहाँ पे फिर से एक कैरेक्टराइजेशन के लिए है. Upon the right, I keep thou the left. मैं राइट साइड जाऊंगा, एंटनी तुम लेफ्ट साइड जाओ, है ना? So he is once again challenging Mark Antony. He is being very confrontational to Mark Antony. Then Antony says, why do you cross me in this exigent? तो वो कह रहा है मार्क एंटनी, why are you crossing me? Why are you disobeying me? Why are you disobeying me? In this exigent, in this crucial moment. For the lack of a better word, we can use crucial moment. तो वो कह रहा है इतनी क्या कहते हैं खतरनाक सिचुएशन में तुम मुझे क्रॉस क्यों कर रहे हो? तुम मुझे चैलेंज क्यों कर रहे हो ऑक्टेवियस? आई डू नॉट क्रॉस यू बट आई विल डू सो. मैं तुमको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बट जो मैं बोल रहा हूं मैं वही करूंगा. मार्च. अब मार्च मतलब यहाँ पे है द आर्मी इज मार्चिंग, द आर्मी इज मूविंग फॉरवर्ड. ड्रम. अब मैंने आपको बताया था देयर आर ड्रम्स यूज्ड इन दिस प्लेस. व्हाई? बिकॉज द आर्मी इज सो लार्ज. तो उनको सिग्नल भेजने के लिए दे यूज्ड टू यूज ड्रम्स. अब यहाँ पे ब्रूटस कैसियस एंड देयर आर्मी, लूशियस, टिटनस, मेसेला एंड अदर्स आर एंटरिंग द सीन. ब्रूटस सेज they stand and would have parley. Parley is a discussion with the enemy. Discussion with the enemy. They want to talk to us. They want to have a parley with us. They want to discuss some things with the enemy. Cassius then says, stand fast, Titnus, we must out and talk. क्या कहते हैं यहाँ पे अपना ग्राउंड होल्ड करो. बी शार्प अबाउट इट.
टिटनेस, हम लोग जा रहे हैं इनसे बात करके आते हैं. ऑक्टेवियस देन सेज मार्क एंटनी शैल वी गिव साइन ऑफ बैटल. मार्क एंटनी, क्या हम लोगों को जंग का ऐलान कर देना चाहिए? एंटनी सेज नो सीजर, वी विल आंसर ऑन देयर चार्ज. सीजर नहीं, वो जब चार्ज करेंगे, व्हेन दे विल अटैक वी विल आंसर बैक. वी आर नॉट गोइंग टू अटैक फर्स्ट. Then Antony says, okay, we have covered this. Then make forth the general would have some word. तो वो कहता है make forth the general would have some word. हम लोग बात करेंगे. Stir not until the signal, है ना? The army should not move, shouldn't move until said so. I will not write that down. Until the signal, until the sign has been given to attack. Brutus, words before blows. Is it so, countrymen? हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन पहले करेंगे लड़ने से पहले. इज इट सो, कंट्रीमैन? क्या ऐसी बात है? ही इज रेफरिंग टू एंटनी एंड ऑक्टेवियस. ऑक्टेवियस सेज not that we love words better as you do. We do not love words as much as you do, Brutus. You are not somebody who fights regularly. I am a soldier, I fight regularly, and I do not prefer words, but here we are. Brutus then says good words are better than bad strokes, Octavius. तो Brutus क्या कह रहा है? Strong opinions are better than strokes, मतलब fists, है ना? Bad blows, bad fists मतलब bad attack से better है that you have stronger words. Antony then says, in your bad strokes, Brutus, you give good words. So Antony is being satirical once again and he says, तुम्हारे खराब blows में Brutus, तुम्हारे पास शब्द तो जरूर अच्छे हैं. Witness the hole you made in Caesar's heart, crying long live hail Caesar. तुमने क्या देखा था जिस तरीके से तुमने सीजर के छाती में छुरा भोंका था? क्राइंग हेल लॉन्ग लिव हेल सीजर, है ना? Cassius then says, this is basically a satirical comment as well. Why? Because he's saying that you made a hole in Caesar's heart. Literally you did so. But तुम उसके पीछे क्या कहते हैं, जब भी वो आता था, you used to shout long live hail Caesar. और आखिर में तुमने उस चीज से उसके दिल में छेद कर दिया. You made a place for yourself in his heart as well, है ना? Then later on you killed him, you stabbed the same heart and you made a hole in it. Cassius then says, Antony, the posture of your blows are yet unknown. Antony, तुम किस तरीके से अटैक करोगे? It is still unknown. But for your words, they rob the Hybla bees and leave them honeyless. Hybla bees is a breed of honey bees, है ना? पर तुम्हारे जो शब्द हैं मार्क एंटनी, वो इतने ज्यादा मीठे हैं कि वो बीस के पास से शहद चुरा लेते हैं. What is Cassius referring to? Cassius is referring to the speech that Antony made while he was on the pedestal where he used to give his speech after Brutus, that he turned the entire public of Rome on his side. And then Antony says, not stingless too. हाँ, बात तो सही है, पर stingless भी छोड़ता हूं. नहीं, stingless नहीं छोड़ता हूं. Those bees are still left with the sting, है ना? Oh yes, and soundless too. हाँ, और उनको तुम soundless भी छोड़ देते हो. For you have stole their buzzing, Antony. क्योंकि तुमने उनकी buzzing छीन ली है, Antony. So what is Brutus trying to say? You buzz like bees. You sound like a bee who is buzzing. मतलब bee का आवाज क्या था? वही चीज है तुम्हारे अंदर. You do not sound like a proper man. You only waste your words and speak like somebody who does not need to be given attention. And very wisely thread before you string, है ना? और बहुत ध्यान से सोच समझ के thread देना before you sting, मतलब before you attack. Villains, you did not so when your wild daggers hacked one another in the sides of Caesar, है ना? तुम लोगों ने ये चीज नहीं की थी. Villains, you did not warn Caesar before killing him when your wild daggers, when your
vicious daggers, I hope I am spelling it right. Your vicious daggers stabbed Caesar, hacked matlab stacked upon each other, stacked upon one another when you were stabbing Caesar in the side of his body. You showed your teeth like apes. तुम्हारे दांत ऐसे दिख रहे थे जैसे कि एप्स के दांत होते हैं. जैसे आपने गुरिल्ला को देखा होगा, जब वो चेस्ट बीट करने जाता है तो वो अपने दांत निकाल लेता है. एंड फॉन्ड लाइक हॉर्न्स मतलब स्क्रीम्ड लाइक हाउंड्स. जैसे हाउंड स्क्रीम करते हैं वैसे यू गाइस वर स्क्रीमिंग. एंड बाउड लाइक बॉन्ड मैन किसिंग सीजर्स फीट whilst damned Casca like a cur behind struck Caesar on the neck. Oh you flatterers, है ना. And bowed like bondmen. Caesar के आगे आपको याद होगा Brutus kneeled and kissed the hand of Caesar, है ना. And some other people as well kneeled before Caesar to distract him. Metellus Cimber was one of them, है ना. So you bowed like bondmen, you bowed like slaves kissing Caesar's feet. Caesar के पैर चूम रहे थे तुम. Whilst damned Casca, wretched Casca, like a cur, like a dog behind struck Caesar on the neck. इसने सीजर के पीछे खड़े होके उसके गर्दन में छुरी मार दी. ओ यू फ्लैटरर्स, ओ यू फ्लैटरर्स का मतलब है जो लोग चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं. ओ यू पीपल हु ओनली टॉक लाइक दैट. फ्लैटरर्स, नाउ ब्रूटस थैंक योरसेल्फ. वो कैसियस शाउट, फ्लैटरर्स, ब्रूटस तुम अपने आप को शुक्रिया अदा करो. दिस टंग हैड नॉट offended so today if Cassius might have ruled. तो वो क्या कह रहा है कि ब्रूटस तुम अपने आप को थैंक करो, ये जबान ना चल रही होती आज और हमको गुस्सा ना दिला रही होती अगर तुम क्या कहते हैं अपने आप को रूल कर लेते. सॉरी, मेरा रूल जो है वो तुम्हारे रूल को ओवरराइड कर देता. You said that you would not like to kill Antony because you will look like savages. But later down the line, Antony was the person who led to your decline. है ना? So that is what Cassius is referring to. Now Cassius is also challenging Brutus in a way. Octavius then says, "Come, come, the cause if arguing make us sweat." है ना? The cause मतलब the war that needs to be fought. है ना? Come the cause matlab come and let's have a war. If arguing makes us sweat, the proof of it will turn to redder drops. Look, I draw a sword against conspirators. When think you that the sword goes up again, never till Caesar's 330 wounds be well avenged, or till another Caesar have added slaughter to the swords of traitors. है ना. तो वो क्या कह रहा है, the proof of our sweat will turn to redder drops, मतलब it will turn to bloody drops. है ना. जो हम लोग की बात अगर हम लोगों को इतना स्वेट करने पे मजबूर करे दे रही है तो हमारी वॉर से क्या होगा, वही आंसू खून में बदल जाएंगे. लुक, आई ड्रॉ अ स्वॉर्ड अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स. मैंने अपनी तलवार जो है वो कॉन्स्पिरेटर के आगे निकाल ली है ना. आई हैव raised my sword in front of the conspirators, and when think you that sword goes up again matlab goes back into the sheath again, never, it will never till Caesar's 330 wounds matlab there were 33 wounds on Caesar's body be well avenged, are revenged, are satisfyingly been taken for satisfyingly revenge has been taken for them, है ना. or till another Caesar, referring to himself have added slaughter to the swords of traitors. और slaughter मतलब killed. या तो ये तलवार 33 वुंड्स को अवेंज करके बाद मयान में जाएगी, या फिर जो सीजर है मतलब मैं हूं, अनदर सीजर will fall at the hands of the conspirators, will die by the hand of Brutus and Cassius. Brutus then says, Caesars, thou cannot die by traitors' hands unless thou brings them with thee. है ना. सीजर तुम ट्रेटर्स के हाथों से नहीं मर सकते हो unless you have brought some traitors amongst yourself. Why is Brutus saying this? Because Brutus believes they are not traitors. Brutus believes
that Octavius Caesar calling them traitors is wrong. Brutus believes they are not traitors. So that is why he says that. Octavius says, "Oh, so I hope I was not born to die on Brutus's sword." वो कहता है, I was not born to die on Brutus's sword. ब्रूटस की तलवार पे मेरी मृत्यु नहीं लिखी है. मैं भी यही होप करता हूं. Brutus says, "Oh, if thou wert the noblest of thy strain, young man, thou couldst not die more honorable." है ना? अगर तुम अपने खून के सबसे नोबलेस्ट मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट वाइज एंड इंटेलिजेंट होते तो क्या कहते हैं स्ट्रेन मतलब ही इज रेफरिंग टू सीजर्स ब्लड है ना द ब्लड लाइन ऑफ सीजर है ना इफ दाउ वर्ट मतलब वर there are a lot of words that you need to understand to get all of this a young man thou couldst not die more honorable है ना इफ तुम अपने खून में अच्छे वाले सीजर होते तो कोई भी इससे ज्यादा ऑनरेबल डेथ नहीं होती dying at the hands of Brutus. So you can see the level of megalomania and narcissism that is coming in Brutus now as well. A peevish schoolboy, worthless of such honor, joined with a masker and a reveler. Cassius is abusing these people. What is Cassius saying? A peevish matlab scrawny. I don't know. Yeah. Scrawny. Scrawny and a little schoolboy, worthless of such honor, doesn't deserve such honor. है ना he does not deserve such honor joined with a masker and a reveler masker मतलब masquerade की बात हो रही है he is referring to a masquerade and a reveler a party man है ना तो व्हाट इज कैसियस सेइंग तुम एक तो तुम में स्कूल बॉय है छोटा सा लड़का है ऑक्टेवियस सीजर इज यंग कंपेयर्ड टू दीस पीपल सो ही इज कॉलिंग हिम अ पीविश स्कूल बॉय वर्थलेस ऑफ सच ऑनर इतना ऑनर जो उसको मिल चुका है उसके लिए तुम बने ही नहीं हो यू आर वर्थलेस फॉर इट यू डोंट डिजर्व इट है ना एंटनी सेज ओल्ड कैसियस स्टिल नाउ ही शाउट्स कि चुप हो जाओ कैसियस यू आर abusing us and I do not like it in a way. Octavius says, "Come, Antony, away." है ना? Come away, Antony. Defiance, traitors, hurl we in your teeth. If you dare fight today, come to the field. If not, when you have stomachs. है ना? तो वो कह रहा है डिफाइंस हम लोगों को डिफाई कर रहे हैं ये ट्रेटर्स हर्ल वी इन योर टीथ हम तुम्हारे दांत अंदर कर देंगे इफ यू डेयर टू फाइट टुडे अगर तुमको हिम्मत है आज लड़ने की तो फील्ड पे आ जाना इफ नॉट जब तुम्हारे अंदर स्टमक्स हो मतलब व्हेन यू हैव करेज when you grow some courage in your heart then you come and fight us exeunt Octavius Antony and their army Octavius Caesar Mark Antony now leave and now there will be some words exchanged between Cassius and Brutus why now blow the wind swell below and swim back the storm is up and all is on the hazard swell below matlab swelling below and swim bark matlab the ocean is howling the ocean is uh, having a high tide the storm is up storm आ गया है on all is on the hazard अब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ hazardous होने वाला है हो Lucius hark a word with you he calls upon Lucius and says I need to have a word with you standing forth he says my lord now Brutus enters the scene and says क्या हुआ my lord Brutus then says Brutus and Lucius now converse apart. किनारे में बात करने लगते हैं. Cassius then calls Messala. Messala standing forth. What says my general? He asks, what do you say, Cassius? Cassius then says, this is my birthday. As this very day was Cassius born. Give me thy hand, Messala. Be thou my witness that against my will, as Pompey was, am I compelled to set upon one battle all our liberties, you know that I held Epicurus strong and his opinion. Now I change my mind and partly credit things that do presage. So what is he trying to say? आज मेरा बर्थडे है सबसे पहली चीज द डे कैसियस वॉज बॉर्न वही दिन है आज फर्स्टली मुझे अपना हाथ दो मैसेला गिव मी योर हैंड मेरा विटनेस बनो दैट अगेंस्ट माई विल विदाउट माई विल आई हैव टू जैसे पोम्पे को
वॉर में जाना पड़ा था. आई एम कंपेल्ड टू सेट अपॉन वन बैटल ऑल आर लिबर्टीज, जिसपे हमारी जितनी भी लिबर्टी या फिर फ्रीडम है वो रिलाय कर रहा है इस बैटल पे, है ना. एल्स वी विल बी बॉन्डमैन, वी विल बिकम स्लेव्स और प्रिजनर्स. इफ वी विन वी विल स्टिल बी फ्री. You know that I held Epicurus strong. Epicurus is a mythological person who died by who had a lot of ill comments about superstition. He did not like superstition and his opinion, मैं उसकी opinion और उसकी बातों को सच मानता था, पर अब मैंने अपना opinion बदल लिया है. and partly credit things that do presage, जो कि omens होती है, मैं उनको थोड़ा बहुत क्रेडिट देने लगा हूं. कमिंग फ्रॉम सार्डिस ऑन आर फॉर्मर एनसाइन, मतलब ऑन आर फॉर्मर फ्लैग, हमारे पुराने फ्लैग पे जब हम सार्डिस से आ रहे थे. टू माइटी ईगल्स फेल एंड दे पर्ज्ड, गॉर्जिंग एंड फीडिंग फ्रॉम आर सोल्जर्स हैंड, हु टू फिलिपी हेयर कंसोर्टेड अस, है ना. तो क्या कह रहा है, दो माइटी ईगल्स आई एंड दे पर्ज, मतलब टुक अवे द फ्लैग, दे रिप्ड द फ्लैग, गॉर्जिंग एंड फीडिंग फ्रॉम आर सोल्जर्स हैंड, मतलब उसको हमारे सोल्जर के हाथ से गॉर्ज कर लिया, नोच लिया और छीन लिया. हु टू फिलिपी हैव कंसोर्टेड अस, मतलब एस्कॉर्टेड अस, है ना. हु हैज एस्कॉर्टेड अस टू फिलिपी. दिस मॉर्निंग आर दे फ्लेड एंड गॉन, है ना. अब इस सुबह वो गायब हो गई हैं. एंड इन द स्टेट्स डू ravens, crows and kites fly over our heads and downward look on us, है ना. नाउ द ईगल्स हैव गॉन, उनकी जगह कौन आ गए हैं, ravens आ गए हैं, crows आ गए हैं, kites आ गए हैं. दीज आर ऑल scavengers, these are scavenger birds. तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे सर पे मंडरा रहे हैं और हमारी तरफ देख रहे हैं. अब इसका क्या मतलब निकल रहा है कि these scavenger birds are waiting for them to be slain, after which they have been slain they will feast upon their dead bodies. So it is a very dark and gruesome line that Cassius is presenting. As we were sickly prey, their shadow seems as a canopy most fatal, under which our armies lie ready to give up the ghost. जिसके नीचे हम एक सिकली प्रे बन के रह जाएंगे और उनकी जो शैडो है वो एक कैनपी बन चुकी है. कैनपी इज अ ट्री विच इज वेरी टॉल. तो उस उनकी शैडो से पूरा जमीन ढक चुकी है और हमारे जो घोस्ट हैं, हमारी जो आर्मी है, रेडी टू अप देयर गिव अप देयर स्पिरिट. स्पिरिट मतलब सोल, अपनी स्पिरिट छोड़ने को तैयार हो चुकी है ना. बिलीव नॉट सो, ऐसा मत सोचो कैसियस. आई बट बिलीव इट पार्टली, आई बट बिलीव इट पार्शियली. आई डोंट कंप्लीटली थिंक दैट इट इज राइट, बट आई डू बिलीव इट पार्टली. फॉर आई एम फ्रेश ऑफ स्पिरिट्स एंड रिजॉल्व to meet all perils very constantly. For I am fresh of spirit, मेरी spirit fresh है और resolved है to meet all perils very constantly, very bravely. जितनी भी perils हैं उनको मैं बहुत strongly, perils मतलब challenges, उनको मैं बहुत constantly, बहुत bravely endure करने वाला हूँ. Even so Lucius, है ना. Lucius, so Brutus बोलता है even so. Now, most noble Brutus, the gods today stand friendly that we may, lovers in peace, lead on our days to age. But since the affairs of men rest still uncertain, let's reason with the worst that may befall. है ना. The gods are standing friendly, मतलब they are favoring us. The gods look favorable to us that we may, lovers in peace, that we are friends in peace, lead on our days to age, है ना. दैट वी विल लीड आवर डेज एंड वी विल एज, और हम लोग दोस्त रहेंगे जब ये सब खत्म हो जाएगा. वी विल बी फ्रेंड्स इन पीस, है ना. बट सिंस द अफेयर्स ऑफ मेन रेस्ट स्टिल अनसर्टन, जो अफेयर है मेन के, विच इज द वॉर, उसकी आउटकम अभी भी इनसर्टन है, विच इज वेरी अनसर्टन स्टिल. उसके बारे में आई नीड टू हैव अ वर्ड विथ यू. लेट्स रीजन विद द वर्ड्स दैट मे बिफॉल. लेट्स रीजन कि इससे भी ज्यादा खराब और बुरा अभी क्या हो सकता है. इफ वी डू लूज द बैटल, अगर हम लोग बैटल हार जाते हैं. देन इन दिस द वेरी लास्ट टाइम वी शैल
speak together, because this is the very last time before we speak together, before we enter the battle. What are you then determined to do? अगर हम लोग हार जाते हैं, what will you do, noble Cassius? Brutus then says, even by the rule of that philosophy by which I did blame Cato for the death which he did give himself, I know not how, but I do find it cowardly and vile. For fear of what might fall, so to prevent the time of life, arming myself with patience to stay the providence of some high powers that govern us below. तो क्या कह रहा है? केटो ने सुसाइड कमिट किया था. केटो किल्ड हिमसेल्फ एंड क्या कहते हैं, आई नो नॉट हाउ, मुझे नहीं मालूम है, बट मुझे फिर भी ये चीज कावर्डली और डिसग्रेसफुल लगती है. आई डू नॉट लाइक इट वेरी मच. I do find that suicide is a coward's way out for fear of what may fall. डर के क्या हो सकता है जिंदगी में, तो सो टू प्रिवेंट द टाइम ऑफ लाइफ, जो तुम्हारे जिंदगी में टाइम बचा है उसको ही खत्म कर देना सही नहीं है. आर्मिंग माई सेल्फ विथ पेशेंस रादर देन आर्मिंग माई सेल्फ विथ अ स्वॉर्ड एंड किलिंग माई सेल्फ, आई शुड आर्म माई सेल्फ विथ पेशेंस to stay the providence of some high powers that govern us below, to stay the providence, to stay the enforcement, to stay the decision that the higher powers have made, जो हमको इस धरती पे गवर्न करती हैं. Cassius then says, then if we lose the battle, you are contented to be led in triumph through the streets of Rome. है ना? So are you contented to be led to the city of Rome in shackles? Are you contented to lead in the city of Rome, being led in the city of Rome by Octavius and Mark Antony as a bondman, as a captive? Brutus says, no, Cassius, no, think not thou, noble Roman, that ever Brutus will go bound to Rome. He bears too great a mind. But this same day must end that work the Ides of March begin, and whether we shall meet again I know not. Therefore our everlasting farewell takes, forever and forever farewell Cassius. If we do meet again, why we shall smile, if not, why then this parting was well made. तो वो क्या कह रहा है? Brutus will never return a captive to Rome. है ना? Brutus will never return as a captive to Rome. He bears too great a mind. उसका जो दिमाग है, it is very intelligent. So he is very intelligent to be led to the city of Rome as a captive. है ना? But this same day must end that the work or Ides of March begin. आज ही के दिन सब खत्म हो जाएगा जो 15 मार्च को शुरू हुआ था. एंड वेदर वी शैल मीट अगेन आई नो नॉट, मुझे नहीं मालूम है कि हम फिर से मिलेंगे या नहीं. देयरफॉर आवर एवर लास्टिंग फेयरवेल टेक, है ना, ये हमारा एवर लास्टिंग फेयरवेल है. दिस विल लास्ट फॉर एवर. और इफ वी डू मीट अगेन वी शैल स्माइल, अगर फिर से हम मिलते हैं कैसियस, वी विल स्माइल एट ईच अदर. इफ नॉट, व्हाई देन दिस पार्टिंग वाज वेल मेड. अगर नहीं होता ऐसा, तो ये जो मुलाकात है आखिरी, दिस पार्टिंग, दिस the way they will part against the armies of Octavius and Antony and not talk again, it was well made, it was very good. बहुत अच्छे तरीके से पार्ट हो रहे हैं ये लोग. Forever and ever farewell Brutus, forever and forever farewell Brutus, bye Brutus. If we do meet again, we'll smile indeed. अगर फिर से हम मिलते हैं तो we will definitely smile. If not, it is true the parting was well made. अगर नहीं मिलते हैं तो ये बात सच है कि जो हमारी आखिरी मुलाकात है वो अच्छे से हुई है. Why then lead on? Oh, that a man mighty know the end of this day's business ere it to come, but it's sufficient that the day will end, and then the end is known. Come ho away. है ना? क्या कहता है? The end of day's business is yet to come, but ये sufficient है कि ये दिन जरूर खत्म होगा. एंड जो दिन का खत्म होने के बाद रिजल्ट है, आउटकम है, वो पता चल जाएगा. कम हो अवे, लेट्स राइड एंड लेट्स मार्च इनटू बैटल. विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सीन. नाउ इन सीन 2 इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल सीन, जहां पे हम देखेंगे कि हाउ ब्रूटस इज राइडिंग विथ मेसेला. लेटर द थर्ड सीन हम उसमें देखेंगे कैसियस और टिटनस के बीच में और पिंडारिस के बीच का एक्सचेंज, है ना.
So let's move forward. Let's move forward and begin with Act 5, Scene 2. है ना? This is a very small and minuscule scene और इसमें हम जानेंगे कि ब्रूटस क्या कर रहा है ना, what is happening on the battlefield. थोड़ा सा टिट्स एंड बिट्स मिलेगा हमको कि what the level of commotion is like in this scene. है ना? Act 5, Scene 1 was a very important scene. It had the conversation between Brutus and Cassius about their deaths, who is willing to commit suicide and who is not. और फिर हमने ये भी जाना था that Mark Antony or Octavius had a confrontation with these two. So that was a very heated argument, you can say. It was a very tumultuous argument where both sides are ready to fight and nobody is ready to yield. So ab let's start with this scene. It is at the same the field of battle. Alarms are यहाँ पे alarm का मतलब है the alarms which are used in battle. So it is referring to that only. Okay, moving forward. Ride, Brutus, ride, Messala, ride and give these bills onto the legion on the other side. Loud alarm, let them set on at once, for I perceive for cold but cold demeanor in Octavius's wing, and sudden push gives them the overthrow. Ride, Messala, let them all come down. So इस सीन में क्या हो रहा है? Brutus is riding on a horse with Messala. Brutus is on a horse with Messala एंड वो कह रहा है ये बिल्स मतलब ऑर्डर्स जो हैं ये पास ऑन कर दो, पास ऑन दीज ऑर्डर्स टू द कॉमन आर्मी, ऑन टू द लीजन्स, ऑन टू द आर्मी, आर्मी को पास कर दो ये, और लेट देम सेट on at once, for I perceive but cold demeanor in Octavius's wing. Octavius की जो आर्मी है उसमें मैं एक कोल्ड डिमीनर देख रहा हूं. अब कोल्ड डिमीनर का यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे कोल्ड डिमीनर का मतलब है कि इट इज अ प्लेस ऑफ बैटल, इट इज अ बैटल फील्ड. अब इसमें अगर आर्मी ही ठंडी पड़ गई, इफ द सोल्जर इज sweaty and if the soldier is cold, it is not very agile, it is not very quick to action. So यहाँ पे it decides who कौन सी साइड जीतेगी. कैसे डिसाइड करेगी? जो सोल्जर वीक हो गया है, जो सोल्जर कमजोर पड़ रहा है जिस तरफ का, वो अल्टरनेटली लूज करने वाली है. क्यों लूज करेगी? क्योंकि if the other side is more agile and if the other side is more strong in a way that you are not, so वहां पे it is penultimately a game of life and death. वहां पे वो मार देंगे आपको और खत्म करके चले जाएंगे. So the cold demeanor is referring to that they look very tired, they look very uh, unagile and very stiff. They do not look like that they are ready for war, but certain push gives them the overthrow. Right, Masala, let them all come down. And sudden push will give them the overthrow. अब अगर हमने सडनली इन पे अटैक कर दिया तो ये जो आर्मी मैन है ये हार जाएंगे. वी विल ओवरथ्रो दिस मैन. राइट मसेला, लेट देम ऑल कम डाउन. भागो मसेला, लेट्स राइड फास्टर एंड लेट देम ऑल कम डाउन. मतलब उनकी पूरी आर्मी को गिरा देते हैं. With this scene is finished. इतना ही सा सीन था. Let's move on to Act 5, Scene 3. So now let's move forward with Act 5, Scene 3 of the play. है ना? In this scene, we will see the tragic end of two important characters. One being the most pivotal characters. आपको शायद पता चल जाएगा when we will start the scene. And this is very important because यहाँ पे it is also going to show us a narrative जो कि Act 5 Scene 5 में फुलफिल होगा. एक बात ओपन होगी जो क्या कहते हैं Act 5 Scene 5 में और बेहतर तरीके से कवर होगी. And this scene can come into your question answers in a way that it relates to some other thing. How, let's say, Brutus talked and Cassius talked about suicide once, and how the deaths of Cassius and Brutus are related or are
do have some certain nuances which are different, and how these two characters at the end, at the dying time, addressed Caesar. मैंने आपको काफी spoilers दे दिए हैं, but all of it is necessary for the examination point of view. Another part of the field, this is some other part of the field. Alarms enter Cassius and Titanus. Titanus and Cassius enter the scene. वन मोर थिंग, यहाँ पे एक कैरेक्टर ऐसा है जिसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस है, जिसका नाम पिंडारस है ना. वी सॉ हिम इन द प्रीवियस सीन्स. वो बट अ स्लेव टू, ही इज बट अ स्लेव टू कैसियस. ओ लुक टिटनस, लुक द विलन्स फ्लाई, है ना. सो ही इज सेइंग, ओ लुक टिटनस, द विलन्स फ्लाई, द एनिमी इज फ्लाइंग, myself have to mine own turned enemy. These insane hair of mine was turning back. I slew the coward and did take it from him. है ना. सो वो ये कह रहा है कि जो मेरा फ्लैग बेरर था, whoever was my flag bearer, उसने क्या किया, वो एनिमी की तरफ क्या कहते हैं अपनी साइड स्विच कर गया, और उसने एनसाइन मतलब जो वो झंडा नहीं फहराते हैं, फहराते हुए लेके जाते हैं आर्मी में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आदमी झंडा फहरा रहा है, तो वैसे ही वो क्या किया, मैंने उससे क्या कहते हैं झंडा छीना, और क्या कहते हैं वो मेरा झंडा लहराते हुए मेरी पीठ पे वार कर रहा था. आई स्लू द कावर्ड, मैंने उसको मार दिया और वो जो झंडा था उससे छीन लिया. Titanus, O Cassius Brutus gave the word too early, who having some advantage on Octavius took it too eagerly, his soldiers fell to spoil, whilst we by Antony are enclosed. अरे कैसियस भाई ये सुनो, ब्रूटस गेव द वर्ड टू अर्ली, मतलब ब्रूटस अटैक्ड टू अर्ली, attacked too early. Brutus attacked very early, and what happened was, क्या कहते हैं, उसके पास कुछ एडवांटेज था ऑक्टेवियस सीजर की आर्मी से रिलेटेड, है ना. बट ब्रूटस अटैक्ड वेरी अर्ली ऑन, और उससे क्या हुआ, दैट इट लेड टू हिज सोल्जर्स फेल टू स्पॉइल, मतलब हिज सोल्जर्स डाइंग, एंड क्या कहते हैं, हम लोग एंटनी की आर्मी से घिर चुके हैं. So that is what he's saying. A Pindarus now enters the scene. Pindarus now is a very important character in this scene. Why he is important? Because he is directly related to the death of Cassius. वो ही मेन आदमी है जो कैसियस की डेथ को रिलेट कर सकता है, जिसको आप ब्लेम कर सकते हो. फ्लाई फर्दर ऑफ माई लॉर्ड, फ्लाई फर्दर ऑफ, और दूर भाग जाइए मेरे लॉर्ड, रन अवे, प्लीज रन अवे मिस्टर कैसियस. मार्क एंटनी इज इन योर टेंथ, मार्क एंटनी हैज इन्वेडेड योर टेंथ, मार्क एंटनी हैज अटैक्ड योर टेंथ. माई लॉर्ड फ्लाई देयरफॉर नोबल कैसियस फार ऑफ, इसी वजह से मेरे लॉर्ड, माई लॉर्ड कैसियस, प्लीज रन अ फार अवे फ्रॉम हियर, बिकॉज एंटनी हैज अटैक्ड योर टेंट. मतलब अगर आप किसी का सेटलमेंट ही अटैक कर दोगे जहां से वो आके आपसे वॉर लड़ रहा है, तो फिर उसके पास कुछ बचा नहीं है रिलाई करने के लिए, बैकअप करने के लिए. द वॉर इज ऑफिशियली लॉस्ट, बिकॉज जो मेन हैं वो भूखे और प्यासे मर जाएंगे, और जो लीडर है वो उनकी क्या कहते हैं उसको आप कैप्टिव बना लोगे. दिस हिल इज फार इनफ, लुक लुक ट्रिटनस, ये हिल काफी दूर है. दिस हिल इज वेरी फार इनफ. आर दोज माई टेंट्स वेयर आई परसीव द फायर. टिटनस, वहां देखो आग लगी हुई है, क्या वो मेरे टेंट्स हैं जहां पे आग लगी हुई है. टिटनस देन सेज, दे आर माई लॉर्ड, हाँ माई लॉर्ड, दे आर द प्लेस वेयर योर टेंट्स यूज्ड टू बी. Then Cassius says, Titanus, if thou lovest me, mount thou my horse and hide thy spurs in him, till he have brought thee up to yonder troops, and here again, that I may rest assured whether yon troops are friend or enemy. मेरे घोड़े को माउंट करो, क्या नाम है, टिटनस, इफ तुम मुझसे प्यार करते हो, एंड हाइड दाई स्पर्स इन हिम, और अपनी क्या कहते हैं स्पर्स जो है मतलब अपनी फुर्तीला पना उसमें हाइड करो, टिल ही हैव बॉट
दी अप टू yonder ट्रूप्स, जो वहां पे ट्रूप्स हैं वहां तक जब तक तुम पहुंच के लौट ना आओ, तब इतनी तेज राइड करो कि तुम एक बार वहां पहुंच के लौट आओ, है ना, दैट आई मे रेस्ट शॉर्ट, जिससे मैं आराम से क्या कहते हैं चैन की सांस ले सकूं, वेदर योर ट्रूप्स आर फ्रेंड और एनिमी, या फिर ये पता करके आओ कि वो जो एनिमी, वो जो ट्रूप्स हैं, क्या वो एनिमी है या फिर क्या वो दोस्त है। आई विल बी हियर अगेन, टिटनेस सेज, इवन विद अ थॉट, मतलब तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आएगा उससे पहले मैं यहाँ पे आ चुका हूँगा। कैसियस सेज, गो पेंडारस, गेट ऑन द हायर हिल, माई साइट वॉज एवर थिक, माई साइट वॉज वीक, माई साइट वॉज ऑलवेज वेरी वीक, regard Titanus and tell me what thou noted about the hill. Pindarus now ascends the hill. और वो रिगार्ड्स दे रहा है, गो रिगार्ड्स टू यू पिंडारस और टिटनेस एंड टेल मी व्हाट नोटिस्ड अबाउट द फील्ड, फील्ड में क्या तुम नोट कर रहे हो। पिंडारस असेंड्स द हिल, पिंडारस नाउ असेंड्स द हिल, और फिर वो कहता है, दिस डे आई ब्रीथ फर्स्ट टाइम, दिस इज कम राउंड एंड वेयर आई डिड बिगिन देयर शैल आई एंड, माई लाइफ इज रन हिज कंपस, तेरा व्हाट न्यूज, है ना। नाउ कैसियस इज सेइंग, दिस डे आई ब्रेड द फर्स्ट टाइम, मतलब दिस इज द बर्थडे ऑफ कैसियस, इस दिन पे कैसियस वाज एक्चुअली बॉर्न, है ना। एंड टाइम इज कम राउंड, और टाइम आ गया है, वेयर आई डिड बिगिन देयर शैल आई एंड, जहां से मेरी शुरुआत हुई थी वहीं पे मैं खत्म हो जाऊंगा। माई लाइफ इज रन हिज कंपस, माई लाइफ हैज कंप्लीटेड द साइकिल, सेरा व्हाट न्यूज, पिंडारस व्हाट इज द न्यूज, पिंडारस says, oh my lord, Cassius says, what news, क्या हुआ पिंडारस, why are you getting shocked? Okay, now, so Pindarus says, Titanus is enclosed round about with horsemen that make to him on the spur. मतलब क्या कह रहा है, पिंडारिस जो है वो कह रहा है टिटनस को राउंड अबाउट इंक्लोज, मतलब हॉर्समैन ने घेर लिया है बेचारे पिंडारिस को, दैट मेक टू हिम ऑन द स्पर, दैट मेक टू हिम विथ स्पीड, स्पीड से बहुत सारे हॉर्समैन ने टिटनस को इनक्लोज कर लिया है। नाउ यहाँ पे एक और न्यूआंस है, न्यूआंस क्या है, पिंडारस डज नॉट नो आर दीज हॉर्समैन एनिमीज और फ्रेंड्स, दे आर सो फार दैट पिंडारस कैन नॉट कंप्लीटली मेक आउट कि यार वो दोस्त हैं कि एनिमीज हैं, येट ही सेज दैट दे आर एनिमीज। तो यहाँ पे एक और चीज हमको पता चलती है, दैट पिंडारस इज समबडी जो कि हो सकता है एक बैड एक्टर है, एक बैड इंडिविजुअल है कंपेयर टू द सिचुएशन ही इज इन, क्योंकि वो उसको बहुत नेगेटिवली पुट कर रहा है, ही इज शोइंग दैट सिचुएशन इन अ वेरी नेगेटिव मैनर, येट ही स्पर्स ऑन, मतलब फिर भी वो जो है टिटनस, ही इज राइडिंग दैट हॉर्स एंड ही इज मूविंग फॉरवर्ड। नाउ दे आर ऑलमोस्ट ऑन हिम, उन लोगों ने ऑलमोस्ट पिंडारस को कैप्चर, टिटनस को कैप्चर कर लिया है। नाउ टिटनस, नाउ सम लाइट, हाँ अब कुछ होप दिख रही है, टिटनस इज रनिंग अवे, ओ ही लाइट्स टू, अरे यार वो रोशनी बुझ गई, और ही इज बीन टेकन बाय दोस हॉर्समैन, शाउट एंड हार्क, दे शाउट फॉर जॉय, है ना, वो लोग चिल्ला रहे हैं फॉर जॉय, वो जॉय के लिए चिल्ला रहे हैं। वंस अगेन अ न्यू न्यूआंस, अगर वो लोग जॉय के लिए चिल्ला रहे हैं टिटनस के साथ, तो हाउ कम पिंडारस कैन से दे आर एक्चुअली एनिमीज, इफ पिंडारस को ये नहीं पता कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो बात चल रही है वहां पे, और फिर वो कह रहा है दीज पीपल आर एनिमीज, स्टिल दे आर शाउटिंग फॉर जॉय, पिंडारस इज पुटिंग इट इन अ वे दैट दे आर शाउटिंग फॉर जॉय कि टिटनस को कैप्चर कर लिया है, बट इन अ सेंस दे आर शाउटिंग बिकॉज ब्रूटस हैज वन ऑन अ पार्ट ऑफ द बैटलफील्ड फ्रॉम I think Octavius Caesar's army, if I'm not mistaken. Cassius, come down, behold no more, है ना, अब आ जाओ नीचे, वहां खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। ओ कावर्ड दैट आई एम टू लिव सो लॉन्ग, मैं कितना बड़ा बुजदिल हूं, कावर्ड हूं जिसने इतनी लंबी जिंदगी जी। टू सी माई बेस्ट फ्रेंड टेकन बिफोर माई फेस, टू सी टिटनस बीइंग टेकन इन फ्रंट ऑफ मी, टू सी दैट मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है उसको एनिमीज ने कैप्चर कर लिया है। पिंडारस नाउ कम्स डाउन, कम हिदर सिरा, नाउ कैसियस इज कॉलिंग हिम कि इधर आओ पिंडारस, इन पार्थिया डिड आई टेक द प्रिजनर,
And then I swore thee, saving to thy life, that whatsoever I did bid thee do, thou should attempt it. Come now, keep thine oath. तो यहां पे हमको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है इन द सेंस ऑफ पिंडारिस. क्या कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है? इन पार्थिया वॉज अ प्लेस जहां पे एक बैटल कैसियस ने लड़ी थी. वहां पे किसको प्रिजनर लिया था? उसको पिंडारिस को एज अ प्रिजनर लिया था कैसियस ने. एंड देन आई स्वोर दी, और फिर मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी लाइफ मैंने बचाई है, उसके बदले में मैं जो भी कहूंगा वो तुम करोगे. अब यहां पे एक प्रिजनर है, प्रिजनर ऑफ वॉर है पिंडारिस. अब आप उसको स्लेव बना लोगे, आप उसको अपनी तरफ इस वे में करोगे कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, मैं चाहता तुमको मार सकता था, मैंने नहीं मारा है, अब तुम जो भी मैं कहूंगा वो करोगे. तो यहां पे एक सेंस ऑफ लॉयल्टी जो है वो बहुत शेकी हो जाएगा. इफ सही में उसकी जान बचाई गई होती बाय कैसियस, तो फिर माना जा सकता था कि पिंडारिस वुड बी अ वेरी लॉयल एंड अ वेरी गुड सर्वेंट. His servitude would not be questioned. Many scholars question Pindaris in this way as well, क्योंकि he was a prisoner. अगर आप किसी prisoner को लेके जा रहे हो, then there is no point in asking him कि नहीं जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे, है ना? At one point in time he is going to betray you. Thou shouldest attempt it. Come now, keep thine oath. अब वो कह रहा है मैंने जो तुमसे कहा था करोगे तो तुमको करना पड़ेगा, अब आओ अपनी ओथ को फुलफिल करो, है ना? और ऐसी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में यार जब गर्दन पे छुरी है कि मेरे लिए काम करो वरना तुमको मैं मार दूंगा, तो भैया कोई भी होगा कह देगा चलो भैया ठीक है हम आपके लिए काम कर लेंगे मालिक, है ना? नाउ बी अ फ्री मैन एंड विद दिस गुड स्वॉर्ड that ran through Cassius' bowels, search this bosom, stand not to answer, here take thou the hilts, and when my face is covered as this now, guide thou the sword, है ना? तो वो क्या कह रहा है? नाउ बी अ फ्री मैन. अब तुम प्रिजनर थे, प्रिजनर से अगर मुझे मार दोगे क्या बन जाओगे? फ्री मैन. अब विद दिस गुड स्वॉर्ड, ये अच्छी तलवार से, that ran through Caesar's bowels का मतलब होता है intestines, है ना? तो सीजर की इंटेस्टिन्स में से जिस स्वॉर्ड ने सीजर की इंटेस्टिन्स में स्टैब किया था, सर्च दिस बोजम, स्टैब माय चेस्ट, है ना? स्टैंड नॉट टू आंसर, यहां खड़े रहो, यहां ऐसे मत खड़े होना कि तुमको कुछ जवाब देना है मेरी बात पे. लिसन टू मी एंड डू नॉट से एनीथिंग मोर, कुछ भी आगे मत बोलना. ये हिल्ट है, हिल्ट मतलब स्वॉर्ड है, इसको लो और मुझे मार दो. किल मी राइट नाउ पिंडारिस. एंड व्हेन माय फेस इज कवर्ड, जब मेरा मुंह ढका होगा जैसे अभी है, गाइड दाउ द स्वॉर्ड, है ना? तो स्वॉर्ड को मेरे पेट में मार देना, मेरे अंदर चाकू घुसा देना. पिंडारिस नाउ स्टैब्स हिम. अब एक और चीज, अगर एक्चुअल में पिंडारिस वाज लॉयल, इफ एक्चुअल में ही केयर्ड अबाउट कैसियस, है ना, तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा. अभी हम लेटर सीन में हमको पता चलेगा कि ब्रूटस के जितने भी क्लोज फ्रेंड्स या फिर क्लोज सर्वेंट्स हैं वो ब्रूटस को इन अ वे क्या कहते हैं, हार्म नहीं करते हैं. मैं कंप्लीटली नहीं बताऊंगा क्या हुआ, वो एक्ट 5 में पढ़ेंगे हम लोग. बट ये और वहां का एक्ट 5 जब आप पढ़ोगे तो आप पैरेलल ड्रॉ कर पाओगे कि कैसे पिंडारिस ने तो ऐसे मार दिया, पर ब्रूटस क्या कहते हैं, ब्रूटस के लोग तो उसको हार्म करने को ही राजी नहीं हुए. तो आपको जक्सटोपोज करने मिलेगा, है ना? ये चीज अगर आंसर में पूछी जा सकती क्वेश्चन में कि व्हाट वाज द डायनामिक बिटवीन कैसियस डेथ और आगे जो एक्ट 5 में होने वाला है, तो आप उस पे ये लाइंस और ये क्या कहते हैं पूरा जो भी चिट्ठा है कैसे हुआ है उसको यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में. सो दिस इज इंपॉर्टेंट इन दैट वे. Caesar, thou art revenge even with the sword that killed thee. Even with the sword that killed thee, मतलब even का यहाँ पे मतलब है we are even, मतलब हमारे सारे कर्ज चुक चुके हैं. उसी स्वॉर्ड से मैं मरा हूं जिससे सीजर मरा था,
और वहां पे मर जाता है कैसियस. Pindarus then says, so I am free yet would not so have been. Durst I have done my will, O Cassius, far from this country Pindarus shall run, when never Rome shall take note of him. है ना. सो हमारा वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स कैसियस इज नो मोर, कैसियस इज डेड. और पिंडारस का इमीडिएट डायलॉग क्या है? सो आई एम फ्री, अब मैं फ्री हूं. येट वुड नॉट हैव सो बिन, चाहता तो ऐसा नहीं होता. दस्ट आई हैव डन माई विल, है ना, मेरा जो भी प्रॉमिस था मैंने फुलफिल कर लिया है. ओ कैसियस, कैसियस मियां, अब मैं भागने जा रहा हूं कंट्री ऑफ रोम से, और इतनी दूर भाग जाऊंगा जहां कोई भी रोमन मुझे पकड़ नहीं पाएगा, जहां मुझे ढूंढ नहीं पाएगा. एक फन फैक्ट ये है कि नॉट रिलेटेड टू दिस सीन एंटायरली, बट क्या कहते हैं, पॉम्पे का जो असैसिनेशन था वो स्पेन या फिर पर्शिया के किसी रूलर ने किया था. नाउ सीइंग दैट, क्या कहते हैं, जो जूलियस सीजर थे, जूलियस सीजर वाज सो फ्यूरियस अबाउट इट बिकॉज इन अ वे कि गिफ्ट करने के लिए वो जो रूलर था उसने उसका हेड लाके सीजर को दिया था. सीजर वाज सो मैड एट हिम दैट सीजर स्टार्टेड अ वॉर विद हिम. व्हाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पॉम्पे वाज अ रूलर, पॉम्पे वाज अ रोमन, सॉरी. तो these Romans used to have a lot of unity together. Now if Pindarus was not a Roman and ये टिटनस वगैरह को पता चलता कि Pindarus has killed Cassius, तो ये क्या करते? Pindarus को मार देते. That is why Pindarus has to run away now. Even if Cassius ने पूछा है, क्या कहते, रिक्वेस्ट करी है और Cassius की विल से Pindarus मारा गया है, nobody would care कि वो किस रीजन से मारा गया, because he is no more to tell कि नहीं भाई मैंने उसको बोला था मार दो मुझे. और पिंडारस कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ इन दैट सिचुएशन. सो फेयर ऑन हिज पार्ट टू रन अवे एज वेल. यहां पे टिटनस और मिसेला री एंटर करते हैं. इट इज बट चेंज, टिटनस फॉर ऑक्टेवियस इज ओवरथ्रोन बाय नोबल ब्रूटस. अब यहां पे हमको कंटेक्स्ट मिलता है, टिटनस ऑक्टेवियस सीजर को ब्रूटस ने ओवरथ्रो कर दिया है. ब्रूटस की आर्मी ने ऑक्टेवियस सीजर की आर्मी को डिफीट कर दिया है. एज कैसियस लीजेंड्स आर बाय एंटनी, जैसे कि एंटनी ने कैसियस की आर्मी को हराया है, वैसे ही ब्रूटस की आर्मी ने ऑक्टेवियस सीजर की आर्मी को हरा दिया है. तो अभी बहुत ज्यादा इक्वल फुटिंग पे बैटल चल रही है, ब्रूटस और ऑक्टेवियस सीजर, कैसियस और एंटनी. बट दिक्कत क्या है? कैसियस इज डेड. तो थोड़ा अब यहां पे मुश्किल आना शुरू होगी. टिटनस, दीज टाइडिंग्स विल वेल कंफर्ट कैसियस. ये बातें सुन के कैसियस को थोड़ा आराम मिलेगा. ही विल बी वेरी कंफर्टेड विथ हियरिंग दिस न्यूज. वेयर डिड यू लीव हिम? कहां छोड़ के गए थे टिटनस भाई? ऑल डिसकंसोलेट विथ पिंडारस हिज बॉन्डमैन ऑन द हिल. ऑल डिसकंसोलेट मतलब मैं उसको एकदम, क्या कहते हैं, मेलनकॉली में छोड़ के गया था पिंडारस उसके स्लेव के साथ हिल पे. मिसेला then says, is not that he has lies upon the ground. वो कह रहा है ये क्या कैसियस तो नहीं है जो ये जमीन पे पड़ा हुआ है. नाउ कैसियस इज डेड एंड पिंडारस इज रन अवे. तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है. नाउ दे सी दैट डेड बॉडी, और उसकी ये कैसियस तो नहीं है यार जो ये मर के गिरा हुआ है आदमी. टिटनस then says, he lies not like the living, oh my heart. ये ऐसे पड़ा है कि ये तो मर गया भाई मेरा, oh my heart. अरे, he shocked. मिसेला then says, is not that he. क्या ये कैसियस? ये कैसियस तो नहीं हो सकता, नहीं, कैसियस ही है. So these people are very shocked in seeing the dead body of Cassius. टिटनस, no, this was he. नहीं मिसेला, it is Cassius, but Cassius is no more. ये Cassius ही है, but Cassius is no more. मतलब ये बॉडी Cassius की है, but Cassius the actual man is dead. O setting sun, as in thy red rays thou sing tonight, है ना. O setting sun, as thy red rays thou sing tonight. आज सूरज डूब गया है, सूरज being referred to as Cassius. So in his red blood Cassius day is set. Cassius का दिन भी खत्म हो गया है. The sun of Rome is set.
This is a pun. Let me have some space here. Yeah. So this is a pun on sun as well. The sun of Rome is set. Our day is gone, clouds, dews, and dangers come. Our deeds are done. Mistress of my success had done this deed. है ना? तो वो क्या कह रहा है? अब क्या है, हमारा दिन खत्म हो गया है, हमारे पास डेंजर्स आने वाले हैं, बादल जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हवा में नमी है, और हमारी जितनी भी डीड्स हैं, अच्छी डीड्स हैं, उनका अब कोई फायदा नहीं है, दे आर डन फॉर। मिस्ट्रस्ट ऑफ माई सक्सेस मतलब मेरी क्या कहते हैं, सक्सेस का मिस्ट्रस्ट, कैसियस वॉज नॉट ट्रस्ट वर्दी इनफ कि वो मेरी सक्सेस के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर सकता कि मैं जब जाऊंगा और लौट के आऊंगा तो मैं जरूर कोई अच्छी न्यूज या फिर मैं लौट के जरूर आऊंगा। तो उसके चक्कर में कैसियस ने अपने आप को मार लिया, ही हैज किल्ड हिमसेल्फ। मिसला, mistrust of good success had done this deed. O hateful error, melancholy's child, why thou show to the apt thoughts of men the things that are not? O error, soon conceived, thou never comest unto a happy birth, but killest the mother that engendered thee. है ना? Mistrust of good success had done this deed. हाँ, mistrust ने ये चीज किया है. O hateful error, oh what a bad error, or what a sad error, or what a demeaning error, or what a heart wrenching error. Melancholy's child, दुख का बच्चा, why dost thou show to the apt thoughts of men? है ना? अच्छे ख्यालों की जगह आदमियों के दिमाग में ऐसे ख्याल क्यों लाके देते हो? द थिंग्स दैट आर नॉट, जो चीजें सच नहीं है उनके बारे में क्यों आदमी लोगों को सोचने देते हो? ओ एरर, क्या गलती हुई है? सून कंसीव, जो कि इतनी जल्दी कंसीव हो गया। दाउ नेवर कमिस्ट अनटू अ हैप्पी बर्थ, ऐसा एरर मैं विश करता हूं कि एक हैप्पी बर्थ पे ना आए। बट किलिस द मदर दैट इंजेंडर्ड दी, मतलब उस माँ को मर जाना चाहिए जो क्या कहते हैं बर्थ दे रही है, पर उस बच्चे को नहीं मरना चाहिए जो पैदा हो रहा है ना? So that is what he's trying to say. He's in a way referring to Cassius as somebody innocent and very pure as well, because he's calling him a happy birth, क्योंकि उसका आज बर्थडे भी है ना? Titnus. What Pindarus? Where art thou, Pindarus? Now they are looking for Pindarus. Seek him, Titnus, whilst I go to meet the noble Brutus, thrusting this report into his ear. I may say thrusting it, for piercing steel and darts envenomed shall be as welcome to the ears of Brutus as tidings of this sight. है ना? तो वो क्या कह रहा है? Titnus, seek for Pindarus while I go to meet Brutus. Thrusting this report मतलब forcibly telling him, forcefully telling him into his ear. I may say thrusting it, मैं इसलिए कह रहा हूं thrusting, for piercing steel मतलब swords, और darts मतलब arrows, in venom जिनमें क्या कहते हैं, जो जहर से लहस होते हैं, पुराने टाइम में they used to cover their swords with venom as well. तो हल्का सा भी अगर कट लग गया आपके, तो that venom is going to spread and you are going to die. Shall be as welcome to the ears of Brutus as tidings of this sight. मतलब Brutus will welcome those things better than tidings of this sight. इस चीज के बारे में सुनने से better prefer करेगा. Titnus. He you Misala and I will seek of Pindarus the while. हाँ ठीक है Misala, go and do that. I'll seek for Pindarus for the while. Misala now exits. Why didst thou send me forth, brave Cassius? क्यों तुमने मुझे आगे भेजा, brave Cassius? Why did you send me forward? Did I not meet thy friends? क्या मैंने तुम्हारे दोस्तों से मुलाकात नहीं की? And did not they put in on my brows this wreath of victory? क्या उन्होंने ये अच्छी खबर of victory मेरी ब्राउज पे, मेरे चेहरे पे नहीं बयां करी? And bid me to give it to thee, और बोला कि मैं तुमको इसके बारे में बताऊं. Didst not hear the shouts? ये वही shouts हैं जो पिंडारस ने कहा था कि they are shouting on the victory of capturing Titanus. Alas, thou hast misconstrued everything, misinterpreted. Alas, तुमने misinterpret कर ली है सब चीज. But hold thee that take this garland on thy brow.
garland मतलब a bouquet of flowers or a set of flowers made in a crown, है ना. So he puts that onto the head of Cassius while he is dead, है ना. And then he says, thy Brutus bid me to give it the, ये ब्रूटस ने कहा था कि मैं तुमको दूं, and I will do on his bidding, और उसके कहने पे मैं ऐसा करूंगा. ब्रूटस कम अपेस and see how I regarded Caius Cassius. ब्रूटस आओ और देखो मैंने कैसियस के साथ कितनी अच्छी तरीके से उसको ऑनर किया है. But your leave gods, this is a Roman's part. Come Cassius sword and find it in his heart, है ना. By your leave gods, by your permission gods, this is a Roman's part, मतलब farewell. This is a Roman's farewell. Come Cassius's sword and find Titanus heart. Titanus के दिल को ढूंढ लो, कैसियस की स्वॉर्ड. मैं दिल क्यों लिख रहा हूं यार. हाँ, तो कैसियस टिटनस इज नाउ गोइंग टू किल हिमसेल्फ एज वेल. तो इस सीन में दो लोग मारे गए, कैसियस एंड टिटनस. नाउ टिटनस किल्स हिमसेल्फ. अलार्म रीएंटर मिसला विद ब्रूटस, कैटो, स्ट्रैटो एंड वॉल्यूमिनस. अब ये सारे लोग सीन में एंटर करते हैं और लुसिलियस भी है. ब्रूटस, वेयर मिसला डॉट हिज बॉडी लाई. मिसला कहाँ है कैसियस की बॉडी. मिसला, लो यॉन्डर एंड टिटनस मॉर्निंग इट, है ना. वो देखो वहां पे है और देखो कैसे टिटनस उसको मॉर्न करना है. टिटनस फेसेस अपवर्ड्स, है ना. वो कह रहा है टिटनस का चेहरा तो ऐसे हो रखा है. केटो सेज ही इज स्लेन, ही इज किल्ड. केटो कह रहा है कि कैसियस को भी मार दिया गया है. ब्रूटस सेज, ओ जूलियस सीजर, thou art mighty yet. Thy spirit walks abroad and turns our swords in our own proper entrails. जूलियस सीजर, तुम अभी भी इतने माइटी हो कि तुम्हारी स्पिरिट जो है वो अभी भी जिंदा है और चल रही है और हमारी तलवारों को गाइड करके हमारे ही छाती में, एंट्रेल मतलब हमारी ही बॉडी में स्टैब करे दे रही है हमको और हम ही को मारे दे रही है, क्योंकि 2 people have committed suicide now. Then low alarms मतलब low drums. Cato says, brave Titanus, look whether he have not crowned dead Caesar. Cassius, sorry. Brave Titanus, देखो उसने क्या कैसियस को क्राउन किया है कि नहीं. Brutus says, are yet 2 Romans living such as these, the last of all Romans, fare thee well. It is impossible that ever Rome should breed thy fellow. Friends, I owe more tears to this dead man than you shall see me pay. क्या कह रहा है. आर ये 2 रोमन्स लिविंग सच एज दीज, ऐसे क्या कोई 2 रोमन्स हैं इन लोगों की तरह जिन्होंने अपने आप को मार लिया है. इनकी तरह क्या कोई रोमन पैदा भी हुआ है आज तक. द लास्ट ऑफ ऑल रोमन्स, दे आर द लास्ट ऑफ देयर काइंड, फेयर दी वेल, इनको अच्छे से फेयरवेल दो. इट इज इम्पॉसिबल दैट एवर रोम शुड ब्रीड दाई फेलो. इट इज इम्पॉसिबल कि ऐसे फेलोज वापस पैदा होंगे इन द कंट्री ऑफ रोम. फ्रेंड्स, आई ओ मोर टीयर्स to this dead man than you shall see me pay. मेरे दोस्तों, मेरे अंदर जितना आंसू है वो तुम मुझे पे करते नहीं देखोगे to these people, because I am not somebody who can cry at this point so much, right? मेरे अंदर बहुत दुख है बट मेरे आंसू उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे. I shall find time Cassius. Cassius, मैं तुम्हारे लिए रोने के लिए टाइम ढूंढूंगा. I shall find time. Come therefore and to Thassos send his body. His funeral shall not be in our camp, lest it discomfort us. Lucius, come and come. Young Cato, let us to the battlefield. Livio and Flavius, set our battles on. 'Tis 3 o'clock and Romans yet are night. We shall try fortune in a second fight. तो वो क्या कह रहा है. Come therefore and to Thassos send his body. Brutus कह रहा है Thassos भेज दो कैसियस की बॉडी. His funeral shall not be in our camp. उसका बैटल फील्ड पे फ्यूनरल नहीं होना चाहिए. बैटल फील्ड पे कैसियस का फ्यूनरल नहीं होना चाहिए. इट शुड बी डन इन अ ऑनरेबल फैशन, लेस्ट इट डिस्कम्फर्ट अस. अगर वो हमको डिस्कम्फर्ट कर रहा है, इट इज बीइंग अ प्रॉब्लम टू अस, इट इज फाइन. लूशियस आओ एंड कम यंग कैटो, कैटो भी आओ. लेट अस टू द फील्ड, आओ बैटल फील्ड पे वापस चलते हैं. लेबियो एंड फ्लावियस सेट आवर बैटल्स ऑन. लेबियो एंड फ्लावियस लीड द बैटल ऑन. हम लोग लड़ने जा रहे हैं. ये 3 बज गया है एंड रोमन्स येट आर नाइट, है ना. अभी रात होने में टाइम है.
हम लोग एक और बार अपना फॉर्चून मतलब लक ट्राई करते हैं इन अ सेकेंड फाइट. दे आर गोइंग टू फाइट अगेन. सो दिस इज व्हाट ब्रूटस इज सेइंग एंड विद दिस द सीन हैज एंडेड. अब इस सीन में यार चार पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली तो कैसियस की डेथ, दूसरी टिटनेस की डेथ, फिर पिंडारस का स्टैंस जो था ऑन किलिंग कैसियस, इट इज क्वाइट क्या कहते हैं लेफ्ट ओपन टू इंटरप्रिटेशन. पर्सनली आई बिलीव कि ही किल्ड कैसियस बिकॉज ही वाज अ स्लेव, ही वाज अ prisoner of war, he was taken not on his will, and then he was later given the opportunity to kill Cassius and free himself. That he did, है ना. So I do not per se find him bad, but I do also think that if Cassius would have been more patient, he would have had a better chance of surviving, and I think they could have won if Cassius was alive. Because Brutus की यहां से विल टूट जाएगी, क्योंकि वन ऑफ द, इफ आप दो लोग बैटल में जा रहे हो, आपका बेस्ट फ्रेंड और आप, और वो मर जाएगा, तो वुड यू बी हैविंग द सेम हार्ट कि आप फिर वो बैटल कंटिन्यू करो? नहीं होगा. और फिर उसके साथ मुझे ये भी लगता है कि पिंडारस का जो स्टैंड था वो बहुत ज्यादा लेस फिल्ड विथ इमोशन, मोर प्रैग्मेटिक. अगर आप किसी से प्यार करते हो तो इतनी प्रैक्टिकली आप किसी को नहीं मार पाओगे, और उसके मारने के जस्ट बाद ये नहीं बोलोगे आई एम अ फ्री मैन. तो ये सारी चीजें कम्स डाउन टू मी कंक्लूडिंग दैट ही इज अ बैड एक्टर. Bad actor in the sense कि he's a bad individual, but he has his own reasons. क्या reasons है? He was a slave, he was a prisoner of war, है ना. तो then killing Cassius justifies his stance. So let's move forward with Act 5, Scene 4 of the play. Now we will see another part of the field. यहाँ पे alarms बज रहे हैं, fighting हो रही है, soldiers of both armies, Brutus, Cato and Lucius are present here. है ना? This Cato is not the same Cato who killed himself. This is a Cato who is related to that one. Brutus, yet countrymen, oh yet hold up your heads. है ना? Countrymen, hold up your heads. What bastard doth not? Who will go with me? है ना? कौन है ऐसा bastard जो मेरे साथ जंग पे नहीं जाएगा? I will proclaim my name about the field. मैं अपना नाम लिख दूंगा. I'll write my name with blood on the battlefield. This is an E and this is nothing, by the way. I am the son of Marcus Cato. I am the son of Marcus Cato, the same Cato who killed himself. A foe to tyrants and my country's friend. Tyrants का मैं दुश्मन और अपनी कंट्री का मैं दोस्त. I am the son of Marcus Cato. आप लोग एक चीज देखिए कि कितने फिल्मी डायलॉग मारते हैं ये लोग, है ना. Brutus then says, and I am Brutus, Marcus Brutus, I Brutus, my country's friend, know me for Brutus. और ये लोग एग्जिट कर जाते हैं सीन. लूशियस सेज, ओ यंग नोबल केटो आर्ट दाउ डाउन. है ना. एग्जिट होता है, लूशियस आता है और वो देखता है कि केटो मर गया है. इतनी बड़ी चढ़ी बात करने की क्या जरूरत थी कि 10 सेकंड के अंदर आपको मर जाना था. Why now thou diest as bravely as Titnus? हमको पता चला था that Titnus also stabbed himself in the last scene and died. So the same way Cato has also killed himself. Not killed himself, been killed by the enemy. And may be honored being Cato's son. And dying on the field is the honor that you are giving as being the son of Cato. First soldier says, yield or diest, or thou diest. Yield matlab give up or I will kill you. Only I yield to die. है ना. मैं मरने के लिए ही यील्ड करूंगा. आई विल नॉट यील्ड इन एनी वे शेप और फॉर्म अपार्ट फ्रॉम दैट. देयर इज सो मच दैट दाउ विल किल मी स्ट्रेट. है ना. ऑफरिंग मनी किल ब्रूटस एंड बी ऑनर्ड इन हिज डेथ. है ना. There is so much that will kill me straight. There is so much that you want from me that you won't kill me straight. ऑफरिंग मनी किल ब्रूटस एंड बी ऑनर्ड इन हिज डेथ. है ना. जाओ ब्रूटस को मारो, मतलब किल ब्रूटस. वो पैसे देता है उस सोल्जर को और कहता है मैं ब्रूटस हूं, मुझे मार दो, और बी क्या कहते हैं ऑनर्ड इन हिज डेथ, और उसकी डेथ में ऑनर ढूंढ लो. है ना. सो दिस सीन इज अ सीन वेयर लूशियस acts like Brutus, because the soldiers do not know who Brutus actually looks like, how Brutus looks like in person.
So they are very confused, and this is misinterpreted identity. This scene revolves around that only. First soldier then says, "We must not a noble prisoner." हम नहीं मानेंगे मारेंगे, तुम एक noble prisoner हो. Second soldier, "Room ho, tell Antony Brutus is taken." मतलब Brutus has been taken as a captive. First soldier says, "I'll tell the news. Here comes the general." मैं जाके एंटनी को बताऊंगा. Here Antony is coming. Enter Antony. Now enter Antony enters the scene. "Brutus is taken. Brutus is taken, my lord." Now the first soldier shouts that Brutus has been taken, my lord. Antony says, "Where is he?" कहाँ है Brutus? तो लूशियस से सेफ. एंटनी, ब्रूटस इज सेफ इनफ. सेफ है, बच के रहा है, अच्छे से जिंदा है, अभी भी सेफ है. इनफ है ना, अच्छे से बचा हुआ है. आई डेयर अश्योर दी दैट नो एनिमी शैल एवर टेक अलाइव द नोबल ब्रूटस. मैं डेयर करता हूं तुम लोगों को कि तुम लोग नोबल ब्रूटस को जिंदा तो नहीं पकड़ पाओगे. Then the gods defend him from so great a shame. When you do find him or alive or dead, he will be found like Brutus, like himself. The gods are defending my Brutus, and what are they defending him from? From a great shame, which is being captive. And he will never get captive or captured. When you do find him alive or dead, he will be found like Brutus, like a free man, and like himself, जैसे कि वो है a free man. Antony says, "This is not Brutus," to the soldier. "Friend, but I assure you, a prize no less in worth." This is not Brutus, my friend, but a prize no less in worth. "Keep this man safe, give him all kindness. I had rather have such men my friends than enemies. Go on and see whether Brutus be alive or dead, and bring us word onto Octavius's tent how everything has chance matlab taken place." So what is he saying? Go look for Brutus, give him all the kindness, give Lucius all the kindness, and क्या कहते हैं, I would rather have Lucius as a friend because he's a very loyal person, loyal friend. So I'd rather have him as a friend than an enemy. Go on and see whether Brutus is alive or dead. जिंदा है Brutus या मर गया है, और मुझे वर्ड लाओ उस बात का Octavius के टेंथ में how everything has chance taken place. So with this scene has ended. We'll be moving forward with Act 5, Scene 5. Okay, so now we are going to begin with Act 5, Scene 5, the last scene of the entire play. I hope अभी तक आप लोगों को बहुत मजा आया होगा प्ले पढ़ने में मेरे साथ. We have covered the entire play in a lot of depth and a lot of क्या कहते हैं positivity as well as negativity जो play में हुई है. Now this is going to conclude the entire play, and this is the final scene. यहाँ पे we'll see what happens with Brutus, Octavius and Antony. And yeah, let's begin. This is another part of the field. Alarms, matlab the drums are being beaten. Enter fighting soldiers of both armies, then Brutus, Cato and Lucius and others. है ना? This is the field where क्या कहते हैं drums बजे जा रहे हैं, order the army, और soldiers of both side are fighting. Brutus, Cato, Lucius और भी लोग present है scene में. Brutus then says, "Come, poor remains of friends, let's rest on this rock." Poor remains of friends, last remaining friends, है ना? Last remaining friends, जितने भी लोग बचे हो मेरी आर्मी के, आओ, let's rest upon this rock. Let's all sit down on this rock. Clitus then says, "Statulus showed the torchlight, but my lord, here he came not back. He is or taken or slain." है ना? स्टैटलिस ने हम लोगों को रास्ता दिखाया था, बट क्या कहते हैं, और फिर वो क्या कहते हैं थोड़ा सर्वे करने गया था, स्काउट करने गया था, बट वो वापस लौट के नहीं आया है. उसको या तो कैप्चर कर लिया है या फिर मार दिया गया है. Brutus says, "Sit thee down, Clitus. Slaying is the word. It is a deed in fashion. Hark thee, Clitus." है ना? Clitus, slaying is the word. हाँ, वो मार दिया गया है. It is the word that you should use. It is a deed in fashion. It is a deed in fashion मतलब जो कि बहुत कॉमन हो चुका है. अब हमारे दोस्त मरते जा रहे हैं. Hark the Clitus. मैंने आपको एक्ट 3 के एंड में बताया था ब्रूटस का
मेंटल क्या कहते हैं फोर्टिट्यूड टूट जाएगा कैसियस की डेथ के बाद. एंड यू कैन सी दैट हैपनिंग हियर. ही इज बीइंग वेरी सैड अबाउट इट, ही इज बीइंग वेरी टायर्ड अबाउट इट, है ना. एंड ही विस्पर्स समथिंग टू क्लिटस. क्लिटस सेज, व्हाट, आई माय लॉर्ड, नो, नॉट फॉर ऑल द वर्ल्ड. मैं ये काम नहीं करूंगा चाहे पूरी दुनिया तबाह हो जाए, है ना. ब्रूटस सेज, पीस देन, शांत हो जाओ, नो वर्ड्स, डोंट से एनीथिंग मोर देन दिस. क्लिटस, I'll rather kill myself. क्लिटस देन सेज, मैं खुद, इससे अच्छा खुद ही को मार लूंगा. ब्रूटस सेज, हार्क दी डार्डेनियस, इधर सुनो मेरी बात डार्डेनियस. एंड देन डार्डेनियस के कान में फिर से वो विस्पर करता है, शैल आई डू सच अ डीड. क्लिटस, ओ डार्डेनियस, है ना. मैं, डार्डेनियस कहता है मैं ये काम करूंगा, मुझसे कह रहे हैं. क्लिटस देन सेज, ओ डार्डेनियस, अरे डार्डेनियस भाई. और फिर डार्डेनियस कहता है, यस क्लिटस, वही बात है जो तुमसे बोली गई है. व्हाट इल रिक्वेस्ट डिड ब्रूटस मेक टू यू, व्हाट खराब रिक्वेस्ट है जो तुमसे ब्रूटस ने करी है टू किल हिम. क्लिटस, लुक ही मेडिटेट्स, है ना. वो कह रहा है कि मुझे मार दो. नाउ ब्रूटस इज थिंकिंग अबाउट कमिटिंग सुसाइड in a way that he is being killed by his friend. The same way Cassius died, Brutus is willing to die. But जैसे पिंडारस ने तुरंत मार दिया था, हम लोगों को वो चीज नहीं देखने मिल रही है. हमको क्या देखने मिल रहा है, ब्रूटस की जो आर्मी है, दोस्त है, दे आर नॉट विलिंग टू किल ब्रूटस, है ना. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पिंडारस एंड दीज पीपल, एंड दिस इज हाउ इट सेट्स देम अपार्ट. पिंडारस की जो मेंटालिटी थी और इन लोगों की जो मेंटालिटी है, इट इज शोन. आप इसको यूज कर सकते हो कि हाउ ब्रूटस एंड कैसियस आर किल्ड इन अ सिमिलर फैशन, बट जो भी हेजिटेशन है वो प्रेजेंट ही नहीं थी पिंडारस में. जैसे ये लोग देख रहे हैं, आप कितना हेजिटेट कर रहे हैं. क्लिटस, नाउ इज द नोबल वेसल फुल ऑफ ग्रीफ दैट इट रन्स ओवर इवन एट हिज आईज. देखो ब्रूटस की जो नोबल वेसल है, द बॉडी ऑफ क्या कहते हैं, ब्रूटस इज फुल ऑफ सो मच ग्रीफ दैट उसकी आंखों से आंसू निकल आए हैं, दैट इट रन्स ओवर इवन एट हिज आईज. ब्रूटस, कम हिदर गुड वॉल्यूमिनस, लिस्ट अ वर्ड, है ना. इधर आओ वॉल्यूमिनस, एक बात सुनो मेरी. वॉल्यूमिनस सेज, व्हाट सेज माय लॉर्ड, क्या कहते हैं ब्रूटस मियां. ब्रूटस सेज, व्हाई दिस वॉल्यूमिनस, है ना. व्हाई दिस वॉल्यूमिनस, the ghost of Caesar had appeared to me too several times by night at Sardis once, and this last night here in Philippi fields. I know my hour is come. जो घोस्ट है सीजर का मेरे सामने 2 बार आ चुका है, टू सेवरल टाइम्स. एट सार्डिस में आया था और अभी फिलिपी की फील्ड में एक और बार आया था. आई नो माई आवर हैज कम, मेरा समय आ गया है. इट इज टाइम फॉर मी टू डाई. Voluminous says, not so my lord, ऐसा नहीं हो सकता है Brutus. Brutus says, nay, I'm sure it is voluminous. Thou seest the world voluminous, how it goes, our enemies have beat us to the pit, है ना. वो क्या कह रहा है, I'm sure it is voluminous, तुम देख रहे हो पूरी दुनिया, voluminous, how it goes, our enemies have beat us to the pit. मतलब एकदम बहुत बुरी तरीके से हमारे enemies ने हमको मार पीट के किनारे कर दिया है. फिर से ड्रम्स बजने लगते हैं. इट इज मोर वर्दी टू लीप इन आवरसेल्व्स देन टैरी टिल दे पुश अस, है ना. इट इज मोर वर्दी दैट वी किल आवरसेल्व्स देन लेट देम टैरी अस, मतलब लेट देम देन टैरी टिल दे पुश अस, देन सर्वाइव टिल दे हैव पुश्ड अस टू द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन. गुड वॉल्यूमिनस, दाउ नोस्ट व्हाट दैट वी टू वेंट टू स्कूल टुगेदर. वो कह रहा है, Voluminous, you know we went to school together. You do know that we are people who have went to school together. Voluminous and Brutus are childhood friends. इससे हमको ये पता चलता है. Even for that our love of old, I pray thee, hold thou my sword hilts whilst I run on it. है ना. वो कह रहा है, even for the love of old, I pray you, क्या कहते हैं, have hold my sword whilst I run at it. मेरी तलवार को पकड़ लो. I'll run at it. I'll stab myself in that way. You just hold my sword, please. I beg of you for old times. Voluminous. That's not an office for a friend. That's not a work that a friend does. It is not the work of a friend. ये कोई दोस्त का काम नहीं है. Alarm. Now alarms are still ringing. Clitus says, fly, fly, my lord. There is no tarrying here. There is no rest here. है ना. There is no rest here.
Fly away, Brutus. Let's run away from here. Brutus says, farewell to you and you, voluminous Strato. Thou hast been all this while asleep. Farewell to thee too, Strato, countrymen. My heart doth joy that yet in all my life I found no man but he was true to me. है ना, वो क्या कह रहा है, सब लोगों को अलविदा, है ना. Strato, voluminous, thou has been this while asleep, है ना. स्ट्रैटो सो रहा था, तो कह रहा है thou has been all this while asleep, जो कि अभी तक सो रहे हो, तुमको भी फेयरवेल, है ना. Countrymen, my heart doth joy that yet in all my life I found no man but he was true to me. है ना, पूरी अपनी जिंदगी में मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं पाया जो मुझसे ऑनेस्ट नहीं था. I found no friend that was a liar, a cheapskate to me. I shall have I shall have glory by this losing day more than Octavius and Mark Antony. मेरे पास मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस से ज्यादा ग्लोरी है आज हारते वक्त भी. By this vile conquest shall attain on to, by this गंदा wretched conquest जो ये लोग हम पे करने वाले हैं. So fare you well at once, immediately farewell to all of you, for Brutus's tongue had almost ended his life's history. क्योंकि ब्रूटस की टंग ने पूरी जिंदगी जी ली है, has orated all of his life. Night hangs upon mine eyes, my bones would rest that have but labor to attain this hour. Alarm cry within, fly, fly, fly. रात हो गई है, मेरी आंखों के ऊपर मेरी हड्डियों को आराम चाहिए, और मेरे जिस्म ने इतनी मेहनत करी है इस मौत की घड़ी के लिए. टू द आर दैट आई एम गोइंग टू डाई. पूरी जिंदगी मेरी बॉडी ने इस आर के लिए लेबर किया है, मेहनत करी है. अब चिल्लाने की आवाज आ रही है, फ्लाई फ्लाई फ्लाई, रन अवे. क्लीटस सेज, फ्लाई माय लॉर्ड फ्लाई. वो कह रहा है ब्रूटस, रन अवे, प्लीज रन अवे. ब्रूटस, हेंस आई विल फॉलो, है ना, हेंस जाओ तुम लोग, मैं फॉलो कर रहा हूं तुम लोगों को. अब क्लीटस, डार्डेनियस और वॉल्यूमस भाग जाते हैं वहां से. आई प्री दी स्ट्रैटो, स्टे दाउ बाय दाई लॉर्ड, thou art a fellow of good respect, thy life had some match of honor in it. Hold then my sword and turn away thy face while I do run upon it. Wilt thou, Strato, है ना, वो स्ट्रैटो से क्या कह रहा है, स्टे बाय योर लॉर्ड, मेरे साथ रुको स्ट्रैटो, तुम एक अच्छे रिस्पेक्टफुल आदमी हो, तुम्हारी जिंदगी में एक स्मीयर ऑफ ऑनर है, देयर इज अ स्मज ऑफ ऑनर इन योर लाइफ. मेरी तलवार पकड़ो एंड अपना चेहरा मोड़ लो, while I do run upon it, जिसपे मैं दौड़ के अपने आप को मार लूंगा. स्ट्रैटो, गिव मी योर हैंड्स फर्स्ट, फेयर यू वेल माय लॉर्ड, मुझे अपने हाथ पहले दीजिए माय लॉर्ड, फेयर यू वेल. देखिए तरीका देखिए आप आदमी को मारने का, वहां पे तुरंत मार दिया, यहाँ पे एकदम आराम से टाइम लेके बात करके, गिविंग फेयरवेल्स टू ईच अदर एंड देन committing suicide. So this is the difference between Pindarus and Strato and all of these men who were with Brutus. Farewell good Strato, farewell to you good Strato, और अपनी तलवार पे ब्रूटस मार लेता है अपने को. Caesar now be still, Caesar now be at peace, है ना. I killed not thee with half so good a will, है ना, मैंने तुमको इतनी क्या कहते हैं बुरी तरीके से नहीं मारा था, मैंने बिल्कुल भी एक गुड क्या कहते हैं विल से तुमको मारा था, मैंने कुछ भी गलत इंटेंशन से तुमको नहीं मारा था. नाउ ही डाइज, है ना. तो आप ये एक चीज और देखिए कि हाउ ही एड्रेसेस सीजर व्हाइल ही इज डाइंग एंड हाउ कैसियस एड्रेसेस सीजर व्हाइल ही इज डाइंग. तो वहां पे भी एक नुआंस है. अलार्म, रिट्रीट, एंटर ऑक्टेवियस, एंटनी, मेसिला, लुसियस एंड द आर्मी. तो ये सारे लोग वापस एंटर कर रहे हैं सीन. Now Octavius asks, what man is that? My master's man. Strato, where is thy master? मेरे मास्टर का आदमी है, मतलब this is a man of Brutus. तो स्ट्रैटो पूछ रहा है कहाँ हो वो, मेसिला पूछ रहा है स्ट्रैटो से कि where is Brutus? Free from the bondage you are in, Mesilla, the conquerors can but make a fire of him, for Brutus only overcame himself and no man else had honor by his death, है ना. The conquerors can make a fire of him, can only give him a funeral, because Brutus overcame himself, Brutus killed himself, Brutus was the person who defeated Brutus. और कोई भी आदमी नहीं है
जो उसकी डेथ का जिम्मा ले पाए, क्रेडिट ले पाए और उसके अपने आप का ऑनर बढ़ा सके. लूशियस. So Brutus should be found. I thank the Brutus that thou hast proved Lucius saying true. मैं तुमको thank you करता हूँ because I made an honest remark to these people that you would never be able to get Brutus and you have killed yourself, thus not giving these men the honor to kill you. Octavius. All that serve Brutus I will entertain them. है ना. मैं जिसने ब्रूटस को क्या कहते हैं सर्व किया है, मैं उनको एंटरटेन करूंगा. आई विल लिसन टू देम, आई विल हेल्प देम. फेलो विल दाउ बिस्टो दाई टाइम विथ मी. है ना. फेलो, क्या तुम अपना टाइम मेरे साथ स्पेंड करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू वर्क विथ मी? आई इफ मिसेला विल प्रेफर मी टू. हाँ, अगर मिसेला कहता है तो. ऑक्टेवियस. डू सो गुड मिसेला, प्लीज डू सो गुड मिसेला. हाउ डाइड माई मास्टर स्ट्रैटो? मिसेला देन आस्क्ड, हाउ डाइड माय मास्टर? मेरा मास्टर कैसे मारा गया? स्ट्रैटो सेज, आई हेल्ड द स्वॉर्ड एंड ही डिड रन ऑन इट. मैंने तलवार पकड़ी थी एंड ही डिड रन ऑन दैट सेम स्वॉर्ड. मिसेला. Octavius then take him to follow thee and that did the latest service to my master. है ना. तो Octavius ठीक है, तुमको आपको इसको अपने साथ लेके जाना है. टू फॉलो यू, टेक हिम विथ यू. He provided the last service to my master. In that regard, he has a free will to choose if he wants to go with you or not. Antony. This was the noblest Roman of them all. All the conspirators, save only he, did that they did in envy of great Caesar. है ना. ये जो था सबसे noblest Roman था amongst the conspirator. This is the viewpoint of Mark Antony towards क्या कहते हैं ब्रूटस. ही इज सेइंग ही वाज वन ऑफ द नोबलेस्ट रोमन ऑफ ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स. उसमें ही ये वर्चस्व था कि उसने एनवी से ब्रूटस सीजर को नहीं मारा था. ही वाज एक्चुअली वरीड अबाउट व्हाट सीजर माइट डू. ही ओनली इन ऑल जनरल ऑनेस्ट थॉट एंड कॉमन गुड टू ऑल मेड वन ऑफ देम. है ना. यही एक ऐसा आदमी था जो कॉमन गुड के लिए सोच रहा था सबके, और यही एक जनरल ऑनेस्ट थॉट लेके सीजर की हत्या करता है. नॉट दैट ही वाज एनवियस ऑफ सीजर इन एनी वे. हिज लाइफ वाज जेंटल एंड द एलिमेंट्स सो मिक्स्ड इन हिम दैट नेचर माइट स्टैंड अप एंड से टू ऑल द वर्ल्ड दिस वाज अ मैन. है ना. उसकी जिंदगी इतनी जेंटल थी एंड द एलिमेंट्स सो मिक्स्ड इन हिम दैट नेचर माइट स्टैंड अप एंड से टू ऑल द वर्ल्ड दिस वाज अ मैन. तो जेंटलनेस, काइंडनेस और जो एक मैन की क्वालिटीज होती हैं वो इसमें इतनी ज्यादा मिक्स थी. दे वर सो इनग्रेन्ड इन हिम कि क्या कहते कुदरत खुद खड़ी होकर कह दे कि ये था एक आदमी. है ना. देन ऑक्टेवियस सेज, अकॉर्डिंग टू हिज वर्च्यू लेट अस यूज हिम विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड राइट्स ऑफ बरियल. है ना. अकॉर्डिंग टू हिज वर्च्यू, उसके क्या कहते हैं नेचर और ऑनर की वजह से हम क्या करेंगे, उसका जो भी बरियल है वो पूरे रिस्पेक्ट और रिचुअल्स के साथ करेंगे. विद इन माई टेंट हिज बोन्स टुनाइट शैल लाई. आज क्या कहते हैं मेरे टेंट में इसकी बोन्स रहेंगी. हिज डेड बॉडी विल बी केप्ट इन माई टेंट मोस्ट लाइक अ सोल्जर, जैसे कि एक सोल्जर की रखी जाती है. ऑर्डर्ड ऑनरेबली इन अ फैशन विच इज ऑनरेबल. So call the field to rest and let's away to part the glories of this happy day. है ना. So call the fields to rest. So call the armies to rest and let's go away to part the glories, to divide the glories of this happy day. है ना. So with this the scene has come to an end, and with this the act in itself has come to an end. Brutus is dead. The tragedy is complete. And the man who wanted to take Julius Caesar down because of all goodwill and nature has been defeated. है ना. So entire narrative was around Brutus only. Caesar was only a minor instrument used to show us the descent of Brutus. है ना. So I believe I have said enough and we have done enough. If you have any more questions, queries, doubts, please leave them in the comments. मैंने कुछ गलती करी हो या फिर मैं कुछ और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ या फिर आपको और कुछ देखना है, समझना है, तो डेफिनेटली लीव इट इन द कमेंट्स. एंड थैंक यू. लाइक एंड सब्सक्राइब. वील मीट विद पोएम्स एंड प्रोजेस नाउ.